Good evening, children. So, in the previous class, we were learning about the parts of a plant and the importance of leaves and how the leaves helps in transpiration. And also we learned the parts of a leaf, right? So, let's have a quick recap what we learned in the previous class. Okay? Yes. See, children, we learned that the part of leaf by which it is attached to the stem is called the petiole. The broad green part of the leaf is called the lamina. जो उसका चौड़ा सा हरा भाग है उसे हम लैमिना कहते हैं. Then we learn that lines on the leaf are called the veins. लीफ में जो लाइंस दिखाई पड़ते हैं उन्हें हम veins कहते हैं. Then there is a prominent line in the middle of the leaf. There is a prominent line in the middle of the leaf. It is known as, or it is called as, midrib, right? The prominent line in the middle of the leaf is called the midrib. And the design made by the veins in the leaf is called the leaf venation. तो जो लीफ में अगर आप ध्यान से देखो जो लाइंस बने होते हैं उनमें जो डिजाइन्स बने होते हैं जो वेन्स होते हैं उनके डिजाइन्स होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं लीफ वेनेशन. If this design is net like on both sides of the midrib, मिड्रिब के दोनों साइड में अगर ये नेट लाइक हो रहा है, नेट लाइक डिजाइन बन रहा है, तो उस वेनेशन को हम क्या कहेंगे? We call that venation as reticulate. Okay, reticulate venation. In the leaves of the grass, the veins are parallel to one another. So we, in the last class, in the previous class, we observed some leaves, okay? And we observed that how the venations are. So the leaves of the grass, the veins are parallel to one another. This is known as the parallel venation, okay? And also we learned that how the leaves help in transpiration. We learned it through a simulation, right, children? Yes. What we learned about transpiration? Transpiration. What is transpiration? Transpiration is the excess, that means the water, excess water in the plants is expelled out. Expelled out through leaves. Now, we also learned about stomata, which are seen on the surface of the leaves. So, what is stomata? Stomatas are the small openings which help in transpiration process as well as for the gases exchange. Okay, children. So, this was a quick recap about what we learned in the previous class. Okay, children. Now, let's learn another process in this class that is called photosynthesis. 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 Okay, photosynthesis. So this photosynthesis is the process by which the green leaves prepare their food in the presence of sunlight, and there's a green colored substance present in them. And for this process, they use water and carbon dioxide, right? And oxygen is given out and also glucose is produced. Okay, children, let me explain this to you with the help of a diagram. See, children. Okay, here on your screen, you can see here is a plant. Okay. Now,
For the process called photosynthesis, sunlight is very, very essential. Sunlight is very essential. That is why the term is called photosynthesis. That means synthesizing with the help of photo. Photo means light. Okay. So let's see. Now, the light energy is absorbed by the plants. Light energy is absorbed by the plants. Okay. Then the raw materials which are required for the photosynthesis is carbon dioxide, okay, and water. Now, the water, how the water is entered into the plant? We see the roots are responsible for water absorption. Okay, पानी क्या करेगा? Roots जो है absorb करेंगे और ये पानी जो है stem के through पूरे जो plant की body है उसमें circulate करेगा, right? And the carbon dioxide, which is a raw material for the process called photosynthesis, is absorbed by the leaves, or we call them as the stomata on the leaves. Okay. As I told you, the stomata are the small openings on the surface of the leaves. तो वो क्या करेंगे? खोलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर को खींच लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, राइट? एंड क्या करेंगे उससे? ये जो है इसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस चलेगा प्लांट के अंदर, प्लांट बॉडी के अंदर. फिर क्या होगा? ये जो है प्लांट्स जो है यानी कि जो ग्रीन लीव्स है वो क्या करेंगे? दे आर नॉन एज द केमिकल फैक्ट्री ऑफ द प्लांट. ओके, वहां पर वो लोग ग्लूकोज के रूप में या कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में जो है अपना भोजन, अपना फूड को जो है प्रिपेयर करेंगे. एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन जो है वो क्या करेंगे? बाहर छोड़ेंगे, विच वी यूज एज अ ब्रीथिंग गैस. ठीक है, हम जो है उसको क्या करते हैं? उसको एक ब्रीथिंग गैस के रूप में हम लोग, जो एनिमल्स हैं और जो ह्यूमन बींग्स है वो सभी उसको यूज करेंगे. ठीक है, यस. तो मैंने अभी क्या बताया आपको कि जो लीव्स हैं, they prepare their food in the presence of sunlight, water, carbon dioxide, etc. अब देखो इसको हम कैसे लिखेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में? किसके प्रेजेंस में? सनलाइट. और आपसे बोला गया था कि एक ग्रीन पिगमेंट होता है, ये एक ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस होता है लीव्स में, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं. क्या कहते हैं बच्चों? क्लोरोफिल कहते हैं. सो कार्बन डाइऑक्साइड when combines with water in the presence of sunlight and chlorophyll, क्या होगा? क्या निकलेगा बाहर? या इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? वो ग्लूकोज बनेगा, जो फूड के रूप में स्टोर किया जाएगा प्लांट्स में. और इसका बाय प्रोडक्ट जो है क्या निकलेगा बच्चों? ऑक्सीजन निकलेगा. ओके, ऑक्सीजन जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हम जो सांस लेते हैं उसमें जो ब्रीथिंग होती है उसमें इनटेक करते हैं हम लोग ऑक्सीजन को. So this is the process called photosynthesis. Okay. Now the food prepared by the plant, as I told you that by the leaves, they ultimately get stored in different parts of the plant. ठीक है, जो food जो ये लोग बनाते हैं इसे क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है. कहाँ पर स्टोर किया जाता है? Get stored in, कहाँ पर? Different parts of the plant. Different parts of the plants. ठीक है, उसके डिफरेंट पार्ट्स में उसको स्टोर किया जा सकता है. ओके बच्चों, अब देखो बेटा, हम जो है ऐसे स्टोर्ड फूड को खाते हैं, है ना? जैसे कि कैरेट हो गया, रेडिश, स्वीट पोटैटो, टर्निप,
टैपियोका, ये सब क्या है? ये स्टोर्ड फूड है। ये जो ग्लूकोज के रूप में जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट निकलता है, जो ग्लूकोज जो फूड होता है, वो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर किया जाता है। ओके जैसे कि फ्रूट्स में या उनके रूट्स में या उनके स्टेम में, तो इन पार्ट्स को हम लोग भोजन के रूप में खा सकते हैं। इज दैट क्लियर टू यू? So this is the process called photosynthesis, which is performed by the leaves. Okay. Yes. Now let us go back to the roots. ठीक है, तो पिछली बार हमने रूट्स के बारे में एक छोटा सा आपको एक बात बताया था कि उसके छोटे से जो फंक्शंस थे उसके बारे में हमने हल्की सी एक बात आपसे डिस्कस की थी, है ना? तो आज हम डिटेल में देखेंगे रूट्स को। यस, ओके। अब हम देखते हैं कि रूट्स क्या है। रूट्स, ओके। अब रूट्स जो है वो रूट सिस्टम के अंतर्गत आता है ना? रूट सिस्टम, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो है एक प्लांट को अगर हम ले, एक प्लांट को अगर हम ले तो उसके दो पार्ट्स होते हैं, है ना? कितने पार्ट्स होते हैं? मेनली टू पार्ट्स में हम लोग उसको क्या कर सकते हैं बच्चे? उसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि शूट सिस्टम और रूट सिस्टम। कैसे? शूट सिस्टम और रूट सिस्टम में, है ना? यस, ये प्लांट हो गया आपका। इसमें ये देखो यहां पर यस, यहां पर इसका फ्लावर हो गया। ये इसके फ्रूट्स है। ओके चिल्ड्रन, ओके। अब देखो ये जो प्लांट है ना, इस प्लांट में आप देख सकते हो जो ऊपर का हिस्सा है जिसमें कि स्टेम आ रहा है, ब्रांचेस आ रहे हैं, लीव्स आ रहा है, फ्लावर आ रहा है, फ्रूट आ रहा है, दिस पार्ट इज नॉन एज द शूट सिस्टम। ओके, and this lower part which is below the ground is known as the root system. Clear? This is the shoot system which is above the ground. The parts which we see the above the ground, that is known as the shoot system, and this particular part is known as the root system. Okay, now let's see what are the functions of roots. Mainly there are two main functions, that means two functions are there. Okay, जो है बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस है ये। क्या है? सबसे पहला तो रूट्स क्या करते हैं? हेल्प इन होल्डिंग द प्लांट, होल्डिंग द प्लांट, ठीक है, फर्मली टू द सॉइल, फर्मली टू द सॉइल। उसको फिक्स करके रखते हैं, हिलने नहीं देते। उसको हम लोग एंकरेज भी कहते हैं। ठीक है, एंकरेज यानी कि फिक्स करके रखना, एक जगह पर होल्ड करके मिट्टी में उसको रखना। अब जो दूसरा मेन इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है रूट्स का, वो है रूट्स क्या करते हैं? रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, कहां से लेते हैं वाटर और मिनरल्स को? वे मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। ओके, तो ये आपसे अगर पूछे कि रूट्स के दो मेन फंक्शंस बताइए, तो आप ऐसे लिख सकते हो। रूट्स हेल्प इन होल्डिंग द प्लांट फर्मली टू द सॉइल and roots absorb water and minerals from the soil. Now, basically roots can be divided into two types. जैसे कि हमने लीफ में दो वेनेशंस पढ़े थे, है ना, पैरेलल वेनेशन और रेटिकुलेट वेनेशन। उसी प्रकार से अगर हम रूट से, अगर आपसे पूछे कि रूट्स को मेनली कितने भागों में आप डिवाइड कर सकते हो, तो हम कहेंगे उसको मेनली हम
टू जो है क्या बोलते हैं उसको, टू टाइप्स ऑफ रूट्स में हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं। वो क्या है, टू टाइप्स ऑफ रूट्स कौन कौन से हैं, मैं यहाँ पर लिखने वाली हूं। पहला तो है टैप रूट, ओके, टैप रूट, टैप रूट। और दूसरा है फाइब्रस, फाइब्रस रूट। ओके चिल्ड्रन, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। ओके, अब मैं आपको दिखाती हूं कि अगर आप किसी भी एक प्लांट को उखाड़ लो तो आप कई बार आप देखोगे कि कई जो प्लांट्स होते हैं उनके जो रूट्स होते हैं ना, वो इस प्रकार से होते हैं। I'll show you. उनके रूट्स आप देखोगे कि ऐसे, उसमें जो है एक मेन रूट होगा आपका, ओके। और थोड़े से रूट्स जो है, वो जो मेन रूट है ना, उसके आसपास से ऐसे निकलेंगे, छोटे छोटे रूट्स, राइट। और कभी कभार आप जैसे ग्रास प्लांट को उखाड़ लो, ग्रास को उखाड़ लो, ओके। ग्रास को जब आप क्या करते हो, आप उसको अपरूट करो, तो आप देखेंगे कि ऐसे रूट्स जो है, बिल्कुल ऐसे ऐसे रूट्स आप उनको देख पाओगे। तो जब भी आप ना इस टाइप के रूट्स को देखो, जैसे मैंने यहां पर ड्रॉ किया है, ये जो रूट सिस्टम है ना, इसको हम टैप रूट सिस्टम कहते हैं। अब इसको पहचानोगे कैसे आप लोग टैप रूट को? हाँ, ये जो है, इन दिस टाइप ऑफ रूट सिस्टम, ठीक है, देयर इज अ प्रोमिनेंट एंड लॉन्ग रूट, ठीक है, देयर इज अ लॉन्ग एंड प्रोमिनेंट रूट एंड अ बंच ऑफ स्मॉलर रूट्स विच ग्रोस फ्रॉम द मेन रूट, ठीक है। तो हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग मेन रूट कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चे? मेन रूट कहेंगे। और मेन रूट में से बंचेस ऑफ स्मॉलर रूट्स निकलते हैं, ठीक है। और उन्हें हम क्या कहेंगे? उनको हम लैटरल रूट्स कहेंगे। क्या कहेंगे? लैटरल रूट्स कहेंगे। क्लियर? So this type of system is known as taproot system, in which there is a prominent and long root and a bunch of smaller roots. Correct? Yes. अब ये देखो, यहाँ पर मैंने ग्रास का एक एग्जाम्पल, एक पिक्चर ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पर इसका रूट्स आप देखो। इन दिस टाइप ऑफ रूट सिस्टम, दैट मीन्स इन फाइब्रस टाइप ऑफ रूट सिस्टम, व्हाट यू ऑब्जर्व इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर साइज्ड रूट। देखो, सिमिलर साइज्ड रूट जो है वो एमर्जेस फ्रॉम द बेस ऑफ द प्लांट। आप देख रहे हो यहाँ पर जो प्लांट का बेस है, यही से एमर्ज होकर आ रहा है, ठीक है। अब इनकी प्रत्येक जो विशेषता क्या होती है कि इनमें कोई भी मेन रूट्स नहीं होते। नो मेन रूट्स आर सीन, ठीक है। मेन रूट्स एब्सेंट होता है इसमें। क्लियर? मेन रूट इज एब्सेंट होता है। और बाकी सभी कैसे होते हैं? सिमिलर साइज जो है रूट्स होते हैं। तो ऐसे एक रूट सिस्टम को आप देखो तो आप बोलोगे वो फाइब्रस रूट है। और इस प्रकार से एक मेन रूट देख रहे हो और उसके लैटरल रूट्स आप देख रहे हो, तो आप उसको बोलोगे कि दैट इज टैप रूट सिस्टम। क्लियर बच्चों? यस। अब एक और बात मैं बता देती हूं। अब बेटा, जो लीव्स के वेनेशन है ना, लीव्स के वेनेशन और ये जो है रूट सिस्टम, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है? देखो बच्चे, ये जो है, जो मेन यानी कि जो टैप रूट सिस्टम होता है ना, जिन प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं उनमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है। जिन प्लांट्स के लीफ में रेटिकुलेट रेटिकुलेट वेनेशन होता है, रेटिकुलेट वेनेशन होता है, जिन प्लांट्स के रूट में रेटिकुलेट वेनेशन होता है, उन प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो ज्यादातर मोस्टली टैप रूट सिस्टम होता है उनका, ठीक है। रेटिकुलेट वेनेशन, ओके, रेटिकुलेट वेनेशन। और जिन प्लांट्स के लीफ में
पैरेलल वेनेशन होता है, पैरेलल वेनेशन होता है। उनके रूट्स अगर आप ध्यान दो, ऑब्जर्व करो, तो उनके रूट्स कैसे होते हैं? फाइब्रस रूट्स होते हैं। कैसे रूट्स होते हैं? फाइब्रस रूट्स होते हैं। इज दिस क्लियर टू यू चिल्ड्रन? Yes. So, in this class, we learned what is photosynthesis, how the leaves prepare their own food in the presence of sunlight, chlorophyll, water, in the presence of, yes, in the presence of chlorophyll and sunlight, right? Yes. तो जो रॉ मटेरियल्स है वो क्या हुए वहां पर? कार्बन डाइऑक्साइड हुआ और वाटर हो गया, है ना? और किसके प्रेजेंस में बन रहा है? क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में बन रहा है। और उसका प्रोडक्ट क्या निकल रहा है? ग्लूकोज हो रहा है, विच इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, विच वी यूज इट एज आवर फूड, है ना? और क्या बोलते हैं, उसका जो बाई प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बनेगा? ऑक्सीजन बनेगा, जो हम ब्रीदिंग पर्पस के लिए लेते हैं। ठीक है। और फिर हमने पढ़ा रूट्स के बारे में, और रूट्स में क्या बताया मैंने आपको? उसके दो फंक्शंस बताए, राइट? क्या क्या फंक्शंस बताए? कि जो है, जो रूट्स होते हैं, दे एंकर द प्लांट टू द सॉइल, है ना? सॉइल में उनको एंकर करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, ताकि एकदम से वो गिरे ना। फिर दूसरा फंक्शन बताया आपको, रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, विच इज एसेंशियल फॉर द प्लांट्स। फिर मैंने आपको बताया कि शूट सिस्टम क्या है, रूट सिस्टम क्या है। फिर हमने पढ़ा दो तरीके के रूट्स, दो प्रकार के रूट्स पढ़े हमने। कौन कौन से? टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। टैप रूट क्या है मैंने आपको बताया? एक ऐसा रूट सिस्टम जिसमें देयर इज अ प्रोमिनेंट लॉन्ग रूट and a bunch of smaller roots which grow from the main root. Okay, so this is the prominent root is known as the main root, and the smaller roots which arises from the main root is known as the lateral root. Okay, या lateral roots कहेंगे हम उसको। और उनमें जिन प्लांट्स में टैप रूट सिस्टम होता है, उनके लीव्स कैसे होते हैं? ज्यादातर उनकी लीव्स की वेनेशन रेटिकुलेट वेनेशन होती है। और फिर हमने पढ़ा फाइब्रस रूट्स क्या है। फाइब्रस रूट्स क्या है बच्चों? फाइब्रस रूट्स ऐसे रूट्स होते हैं जो एक ग्रुप ऑफ सिमिलर रूट्स emerge फ्रॉम द बेस ऑफ द प्लांट। दे डू नॉट हैव अ मेन रूट, उनमें कोई भी मेन रूट नहीं होता है, सभी बराबर होते हैं। ठीक है। और जो है पैरेलल वेनेशन, जिस प्लांट्स के लीव्स पैरेलल वेनेशन दिखाते हैं, उनके रूट्स कैसे होते हैं? उनके रूट्स फाइब्रस रूट्स होते हैं। क्लियर? तो ये सब बातें आज हमने की। आई होप ये सबको क्लियर हो चुका है। अगली क्लास में हम बात करेंगे द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ द प्लांट, द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, द फ्लावर। ओके, फ्लावर के बारे में हम बहुत सारी जानकारी अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आज की कक्षा यही समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।